عمران خان کے سینئر فوجی افسران پر الزامات من گھڑت، بے بنیاد اور قابل مذمت ہیں۔ ترجمان پاک فوج کا چیئرمین پی ٹی آئی کے الزامات پر سخت رد عمل، قانونی کارروائی کا عندیہ دیا۔ جاری بیان میں کہا گیا، فوجی اور انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکاروں کو سیاسی مقاصد کے لیے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ متعلقہ سیاسی رہنما جھوٹے الزامات کی بجائے قانونی راستہ اختیار کریں۔ عمران خان کے سینئر فوجی افسر پر الزامات من گھڑت، بے بنیاد اور قابل مذمت۔ ترجمان پاک فوج کا چیئرمین پی ٹی آئی کے الزامات پر سخت رد عمل، قانونی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ جاری بیان میں کہا، فوجی اور انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکاروں کو سیاسی مقاصد کے لیے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ متعلقہ سیاسی رہنما جھوٹے الزامات کے بجائے قانونی راستہ اختیار کریں۔ عمران خان کے سینئر فوجی افسر پر الزامات، آئی ایس پی آر کا سخت رد عمل۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، چیئرمین پی ٹی آئی نے بغیر ثبوت سینئر فوجی افسر پر انتہائی بے بنیاد الزامات لگائے۔ حاضر سروس فوجی افسر پر بغیر ثبوت الزامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں، من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی الزام ناقابل قبول ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق الزامات کا سلسلہ گزشتہ 1 سال سے مستقل جاری ہے۔ فوجی اور انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکاروں کو سیاسی مقاصد کے لیے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سیاسی مقاصد کے لیے اشتعال انگیزی اور سنسنی خیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے مطالبہ کیا کہ مذکورہ سیاسی رہنما قانونی راستہ اختیار کریں اور جھوٹے الزامات لگانا بند کریں۔ بصورت دیگر ادارہ جھوٹے، بے بنیاد بیانات اور پروپیگنڈے کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اثاثوں کی چھان بین کرے گی۔ متعلقہ اداروں سے 15 دن میں ریکارڈ مانگ لیا۔ رکن کمیٹی محسن عزیز نے چھان بین کی مخالفت کی۔ چیئرمین پی اے سی نور عالم خان نے کہا، یہ کرپشن کا معاملہ ہے، چھوڑوں گا نہیں۔ چیف سیکریٹریز کو آئندہ عدم حاضری پر سمن جاری کرنے کی وارننگ بھی جاری کر دی۔ چیئرمین نور عالم کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، حاضر 14 اراکین میں سے 13 نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی نقوی کے اثاثوں کی چھان بین کرنے کی حمایت کی، جبکہ محسن عزیز نے مخالفت کی۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چیئرمین ایف بی آر کو ہدایت کی کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ فراہم کریں۔ حکومت سے ملنے والے پلاٹس، فروخت کی گئی زمینوں اور پلاٹس کا ریکارڈ بھی دیا جائے۔ نور عالم خان نے آڈیٹر جنرل کو ہدایت کی کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے پلاٹس کی کیٹیگریز کی تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کرائی جائے۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کی ٹریول ہسٹری اور نادرا ریکارڈ کے مطابق معزز جج کے خاندان میں شامل افراد کی لسٹ بھی مانگ لی گئی۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کہنا تھا، یہ جسٹس مظاہر یا کسی ایکس وائی کا ایشو نہیں، یہ کرپشن کا معاملہ ہے، اس لیے چھوڑوں گا نہیں۔ اگر میری بہن، بیٹی اور بچوں کے بھی اثاثے آمدن سے زائد ہیں تو پیچھا کروں گا۔ چیف سیکریٹریز کی عدم حاضری پر کمیٹی چیئرمین نے آئندہ نہ آنے کی صورت میں سمن جاری کرنے کی وارننگ بھی دی۔ سینیٹر رضا ربانی کہتے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سپریم کورٹ کے دیگر مالی معاملات دیکھ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے کسی جج کی دولت کی تحقیقات کر کے پی اے سی اپنی حدود سے تجاوز کرے گی۔ پارلیمنٹ میں وہ کام نہ کریں جس کی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا۔ رہنما پیپلز پارٹی اور سینئر پارلیمنٹیرین کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو دیگر اداروں پر بالادستی حاصل ہے، پارلیمنٹ اس کا بھرپور تحفظ کرے۔ پارلیمنٹ طویل عرصے سے عدلیہ اور ایگزیکٹو کے سامنے اپنے حق سے دستبردار ہو چکی۔ پارلیمنٹ کو اپنے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ تمام آئینی اداروں کو اختیارات کے مسلط کے تصور پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ موجودہ ادارہ جاتی بحران حل کرنے مذاکرات درکار ہیں۔ مذاکرات کے لیے پارلیمنٹ کو قیادت کرنی چاہیے۔ وفاقی حکومت کا پارلیمنٹ کو مزید طاقتور بنانے کا فیصلہ، توہین پارلیمنٹ بل کل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بل میں مختلف سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ کسی بھی حکومتی یا ریاستی عہدیدار کو طلب کیا جا سکے گا۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کی توہین پر کسی بھی حکومتی یا ریاستی عہدیدار کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ 24 رکنی پارلیمانی کانٹیمپٹ کمیٹی توہین پارلیمنٹ کیسز کی تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی میں اپوزیشن اور حکومت کے 50% اراکین کو شامل کیا جائے گا۔ کانٹیمپٹ کمیٹی شکایات کی رپورٹ پر اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کو سزا تجویز کرے گی۔ اسپیکر یا پھر چیئرمین سینٹ متعلقہ فرد پر سزا کے تعین کا اعلان کر سکیں گے۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر حکم امتناع برقرار، اٹارنی جنرل کو کل تک پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت۔ کیس کی سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔
अदालती इस्लाहाती एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरखास्त दायर की है। मुस्लिम लीग नून ने भी फुल कोर्ट की तश्कील के लिए अदालत को दरखास्त दे दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरखास्त पर तो अभी नंबर भी नहीं लगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने दस्तावेजात जमा करवा दी हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि तवक्को है कि कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। स्पीकर ऑफिस से बाज़ाबता और गैर रस्मी तौर पर भी राबता किया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं। कानून साजी के इख्तियार के मुकदमात मुख्तलिफ बेंचेस मामूल में सुनते रहते हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि आर्टिकल 91 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। इफ्तिखार चौधरी केस में जज को माजूल कर दिया गया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील का हुक्म देते हैं, मुस्लिम लीग फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, साइलीन के एतराज़ात पर अदालत फैसला करती है। साइलीन अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस बेंच से अलहदा होकर फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए था। मौजूदा बेंच को गैर कानूनी समझते हैं। आइन के मुताबिक पार्लिमान कानून साज इदारा है। पाकिस्तान की तारीख का पहला कानून है जिसके बनने से पहले ही स्टे ले लिया गया। जिस कानून के तहत इनके इख्तियारात महदूद हुए वो इसकी कैसे समाअत कर सकते हैं। कानून पर अमल दरामद रोकना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं था। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच केस की समाअत कर रहा है। नून लीग के वकीला के पास कोई जवाब नहीं थे। मीडिया से सुना हुकूमत पार्लिमानी कमेटी का रिकॉर्ड नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देने से हुकूमत नहीं चल सकती। मुल्क की मईशत की तबाही कर दी गई है। 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कमाने वाला परेशान है। पाकिस्तान के लोगों को मौका दें, वो हुक्मरान चुन सकें। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को पार्लियामेंट हाउस तलब करने का फैसला कर लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में कायम कमेटी का पहला इजलास कल होने वाला है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान की ईमा पर सियासी मुखालफिन को चुन चुन कर निशाना बनाया। आज भी पीटीआई के जुडिशल मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। जाले रहनुमा शर्जील मेमन का इल्जाम, कहा ऑडियो लीक ने जानिबदारी साबित कर दी। साकिब निसार के सुनाए फैसलों की दोबारा तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ नैब तहकीकात की सिफारिश भी करता हूँ। जिस तरह साकिब निसार टिकटें बेच रहा है, पंजाब की एंटी करप्शन नैब शुड कॉल इमीडिएटली साकिब निसार और उसके बेटे को, दोनों को बुलाना चाहिए और दोनों को जेल में डालकर जिस तरह बाकियों से आपने सलूक किए थे, प्रॉपर इनके 90 दिन के रिमांड लेने चाहिए और 90 दिन के रिमांड के बाद इनसे वो पैसे रिकवर करवाए जाएं जो ये पैसे उड़ा रहे हैं। और फिर जितने भी मैं कहता हूं इसके लिए एक कमीशन बनाया जाए। अगर वो कमीशन और कहीं नहीं बनता तो पार्लियामेंट में बने, वरना कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए या कोई स्टैंडिंग कमेटी बनाए और उसमें जितने भी साकिब निसार के इस तरह के फैसले थे जो मुतनाज़े थे, जिसमें अब ये जाहिर होता है कि उसकी बदनीयती थी, एक एक की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से पार्टी के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली समेत अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और चीफ जस्टिस समेत मुअज़्ज़ज़ अदलिया से भरपूर इजहार यकजहती पर इत्तेफाक किया। 90 रोज की आइनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद पंजाब में निगरान हुकूमत के वजूद और फस्तायत की शदीद मजम्मत की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऐलान करदा जलसों और अवामी तहरीक के लिए भरपूर तैयारियों पर भी इत्तेफाक हुआ। पंजाब से कई अहम सियासी शख्सियात नैयर बुखारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई। शमूलियती तकरीब पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद हुई। वस्ती पंजाब से कई अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल हुई हैं। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों में मलिक सावल अवान, मलिक मजहर अवान, मलिक अजहर अवान, जावेद इकबाल भी जियाले बन चुके हैं। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी, ये कहना था नैयर हुसैन बुखारी का।
इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक जवाब पेशावर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने 8 अक्टूबर की तारीख दे रखी है। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर की दी गई तारीख की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का पाबंद है। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत की मुकर्ररा मुद्दत की तकमील। पीटीआई ने मौजूदा निगरान हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी। पिटीशन पीटीआई के साबिक एमपीए फजल इलाही की जानिब से दायर की गई। पिटीशन में मौक़िफ़ अपनाया गया कि निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए होती है, जो मुकम्मल हो चुकी है। अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद निगरान हुकूमत के इक़दाम गैर आइनी है। 18 जनवरी को असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत को आर्टिकल 105 के तहत काबीना तश्कील करने से पहले इलेक्शन की तारीख देना होती है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। वज़ारत ख़ारजा के सालाना बजट के खसारे को पूरा करने के लिए इजाफी 8.4 अरब के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद, बताइएगा। फंड से मंसूबे के लिए 7 अरब 84 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी हुई है। 4 नए कार्डियक स्टेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा खुर्दा कीमतों और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस में 15.8 मुरबा किलोमीटर के इजाफी रकबे की मंजूरी भी दे दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद ना होने पर सख्त बरहम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने मुतल्लिका वज़ारतों से जवाब तलब कर लिया। 18 अक्टूबर को वज़ीर आज़म ने करप्शन में मुलविस तकसीम कार कंपनीज के अफसरान की लिस्ट, सालाना 100 अरब रुपए मालियत की बिजली चोरी रोकने का प्लान, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। ऑन शिराजी से तफसीलात जानेंगे। ऑन बताइएगा। जी अस्सलाम, बिल्कुल देखिए शहबाज शरीफ की जानब से वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद न होने पर सख्त नरमी का इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने मुतल्लिका वज़ारतों से जवाब तलब किया है। ये 18 अक्टूबर को वज़ीर आज़म ने करप्शन में मुलविस तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की लिस्ट तलब की थी। वज़ीर आज़म ने 100 अरब रुपए मालियत की बिजली चोरी रोकने का प्लान भी तलब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने करप्ट अफसरान के बारे में प्लान 2 हफ्ते में तलब किया था। 5-6 माह गुजरने के बावजूद पावर डिवीजन ने इस्तेमाल किया। काबीना फैसले को फाइलों में दबा दिया गया। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के फैसले में रुकावट वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर दिया। जैसे कि तकसीम कार कंपनियों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए भी प्लान तलब किया। बहुत शुक्रिया। ऑन शिराजी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। इस्लामाबाद में होने वाले सह-फरीकी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी हो गया। कहा गया है कि मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो चीनी और अफगान वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का सलामती, तरक्की और ताउन को मज़ीद वसअत देने का अज़्म। मुज़ाकरात में सिक्योरिटी, मुनज़्ज़म जराइम और इंसदादे मनशियात स्मगलिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि खित्ते में मौशी खुशहाली और राबतों के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहते हैं। हमारी हुकूमत को 20 माह हो गए चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिश की, मगर पाबंदियों की वजह से अफगान बैंक्स को खाम माल दरामद करने में मुश्किलात हैं। अफगानिस्तान में महंगाई कम और अफगान करेंसी मुस्तहकम हुई है। दीगर ममालिक के साथ मुआशी ताल्लुकात में पाबंदियाँ बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा का कहना था पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सऊदी अरब समेत दुनिया भर में मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। वज़ीर ख़ारजा ने नामज़द सफ़ीर को हिदायत की कि सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ।